اپنی ہر ایک شام ہر رات بیچ کر، اپنی ہر ایک شام ہر رات بیچ کر، اب جینا آ گیا ہے ہم کو اپنی ذات بیچ کر۔ ہم بھی کیا عجب کہ کڑی دھوپ تلے صحرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر۔ میرے نہایت ہی قابل احترام پارلیمنٹیرینز، میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، پاسٹرز حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز بھٹی کے آج اس میموریل سروس کی تقریب کو آج ہم سب مل کر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسیحی آباد ہیں سب مل کر آج شہباز بھٹی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کی شہادت کے اس مقام اور درجہ پر پہنچنے پر سیلیوٹ کرنے کے لیے تمام مسیحی یکجا ہیں۔ اور صرف مسیحی نہیں بلکہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مذہبی اقلیتیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مثبت سوچ رکھنے والے مسلمان بھائی بہن بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ کی گھڑی سے آج پوری قوم گزر رہی ہے، جس کرب کے عالم سے آج پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں گزر رہی ہیں، آج جو بوجھ آج اپنے اوپر ہم برداشت کیے اور اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات عیاں ہے کہ سب نے اپنے اپنے تائیں اپنی اپنی سیاسی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی کاوش کی، لیکن آج میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے شہید شہباز بھٹی صاحب کو، جن کے لہو نے آج تمام سیاسی لوگوں کو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کر دیا ہے۔ آج آپ کی نمائندگی کرنے والے وہ لوگ جو اسمبلیوں کے فلور پہ آپ کے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں، جو پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، شہباز بھٹی کی اس قربانی کی وجہ سے، اس شہادت کی وجہ سے، اس لہو کے بہہ جانے کی وجہ سے آج سب متحد و متفق ہیں۔ اور اسی لیے میرے بھائی نے یہاں پر کھڑے ہو کر پہلے بھی بات کی تھی، میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ شہباز بھٹی کسی ایک تحریک، کسی ایک اپما کی ملکیت نہیں رہا، بلکہ اس کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ اور آج ہم یہ عہد پما باندھنے جا رہے ہیں، آج شہباز بھٹی کے اس لہو کو، جو لہو ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہایا گیا، ہماری آزادی کے لیے بہایا گیا، ہمارے حقوق جو سلب شدہ حقوق ہیں ان کی حصولی کے لیے بہایا گیا، تو آج ہم عہد پما باندھتے ہیں۔ آج کا دن عہد تجدید کا دن ہے کہ پوری قوم یکجا ہے، متحد و متفق ہے، کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ شہباز بھٹی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ہم اس خون کی لاج رکھیں گے اور اس خون سے انقلاب برپا کریں گے۔ پوری قوم متحد اور متفق ہو کے اس بھٹی شہید کے اس کاز کو آگے لے کے چلے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعادہ، یہ اٹوٹ فیصلہ جو تمام نمائندگان نے، آج میں دیکھتا ہوں یہاں پر پیپلز پارٹی سے ہماری قیادت بھی موجود ہے، ہمارے بہن بھائیوں نے آ کر بات کی، مسلم لیگ نواز کی قیادت بھی موجود ہے، بلوچستان سے آئی ہماری بہن جو جمعیت علماء اسلام سے بلانگ کرتی ہیں، ہم سب نے اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی شہباز بھٹی شہید کے لہو کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی صفوں کو درست کریں گے، ہم اس سمت پر چلیں گے جس کی بابت ہمارے بھائی شہباز بھٹی صاحب نے اس سمت کا طرف اشارہ کیا تھا، جو منزل کی طرف اپنی قوم کو لے کے جانا چاہتا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں
कि जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खून बहाए बगैर नजात नहीं, तो मैं ये समझता हूं कि खून जब बहता है तभी तहरीके पा होते हैं, तभी हम जैसे जो महकूम लोग हैं वो आजादी की तरफ माहिल होते हैं। आज हम आजाद मुल्क में गुलामों सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें आज इस बात का इतराफ करना पड़ेगा कि जब तक हम अपने अंदर से नाउमीदी को खत्म नहीं करते, जब तक कौम बेदार नहीं होती, जब तक एक मसीही कौम जिंदा कौम होने का सबूत नहीं देती, मैं समझता हूं तब तक कोई खून रंग नहीं ला सकता। इसलिए आज हमें इस लहू से जो हमारे लिए बेदरेग इस्लामाबाद की सड़कों पर बहा दिया गया, हमें उससे अहद बांधना है कि शहबाज भट्टी शहीद, तेरा लहू रहेगा नहीं जाएगा। तेरे बहन भाई तेरे लहू की लाज, तेरे लहू की लाज रखेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आज वो वक्त आ गया है, हमें जिस तरह दबाया जाता है, पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, अंधेरों में धकेल दिया जाता है, मैं समझता हूं कि पीछे हमें फेंकते धकेलते धकेलते हम दीवार के साथ लग गए हैं। अब पीछे गुंजाइश नहीं है कि मजीद धक्का लगाया जाए। अब ये जोर आगे की तरफ बढ़ेगा। एक कौम जिंदा कौम होने का सबूत देगी कि हम बेदार हैं। हम अपने शहीदों को खराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनके लहू से इंसाफ करना जानते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। और ये नाउमीदी की बात नहीं है, मैं आज आपको उम्मीद का पैगाम देना चाहता हूं कि शहबाज भट्टी ने जो दीप रोशन किया है, ये आज मेरा और आपका फर्ज है कि उस दीप से दीप जलाएं। तभी मैं समझता हूं कि जो अंधेरे हैं वो हमारी किस्मत के नहीं कि वो उजालों में ना बदल सके। हम उन अंधेरों को उजालों में बदलेंगे, उन नाउमीदियों को उम्मीद में बदलेंगे। यही हमारे कायद का ख्वाब था और हम इस ख्वाब को ताबीर में बदलेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आज जो यहां पर लोग बैठे हैं, हम अपने कायद शहीद आजम शहबाज भट्टी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। शहबाज भट्टी जिसने पाकिस्तान के मसखशुदा चेहरे को दुनिया के सामने एक खूबसूरत चेहरा बनाकर पेश किया, जिसने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान सिर्फ इंतहा पसंदों का नहीं बल्कि हम जैसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की वजह से कायम और दायम है। पाकिस्तान में जो लोग इंतशार फैला रहे हैं, जो लोग बदअमनी चाहते हैं, जो लोग रोज मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को सड़कों पर गोलियों से ढेर करते हैं, जो लोग रोज शहरों पे बम ब्लास्ट करते हैं, दर हकीकत ये लोग हैं जो अक़लियत में हैं। मैं और आप इस मुल्क के खैर खा हैं, इस मुल्क की सलामती और बढ़ोतरी चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक बुलंद मुकाम दिलाना चाहते हैं। शहबाज भट्टी साहब यही कहते थे कि वो लोग मेजॉरिटी में हैं। और सबसे बड़ी बात जो खलील सिंधु साहब भी फरमा रहे थे कि कभी किसी मसीही ने, कोई मसीही रियासत का दहशतगर्द नहीं बना, किसी मसीही ने रियासती इंतजाम को चैलेंज नहीं किया, बल्कि हम तो वो लोग हैं कि अगर कोई त्योहार भी आता है तो सबसे पहले अपने बच्चों की खैर खैरियत से पहले हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, उसकी इस्तेकामत और बका के लिए दुआ करते हैं, इस मुल्क में अमन और सलामती के प्रचार के लिए दुआ करते हैं। अरे हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। और जब आप हमारी क़यादत को जो इस पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी करती है और ऐवान के फ्लोर पे इनके हकूक जो माजी में सलब शुदा हकूक हैं उनकी हसूली की बात करती है, पिछड़े हुए तबके को इंसाफ फराहम करने की बात करती है, तो मैं समझता हूं
उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, बीच चौराहे पर मार दिया जाता है, उसे सूली पे लटका दिया जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि इसीलिए तमाम भाइयों बहनों ने आज इस पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने की बात की है। और यही विजन मेरे भाई शहबाज भट्टी साहब का था। कभी मेरे मुंह से जमातों का इख्तलाफ था, लेकिन कौमी झंडे पे हम दोनों भाई मुत्तहिद और मुत्तफिक थे। कोई गोजरा इंसिडेंट हो, बामनी वाले का मसला हमारे सामने हो, समड़ियाल की हकीकत हम पर जाहिर हो, मैं समझता हूं टोंकवे हम दोनों ने इकट्ठे चल के ये बात साबित की है कि कौम के लिए हम मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। आज वक्त और जरूरत इस समर की है कि आज जिस तरह से आपकी सियासी क़यादत ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इस बात का अयादा किया है, ना इत्तेफाकी को दूर करेंगे बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज मजहबी क़यादत को भी चाहिए कि वो आपसी रंजिशों को भुलाए और कौम के लिए, खुदारा कौम के लिए उठ खड़ी हो, मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए। तो मैं समझता हूं कि वो इलामा साहब कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो आज कौम के लिए सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। अपने अपने मामलात अपनी जेब में रखें, अपने घरों तक महदूद रखें, लेकिन कौमी मामलात में कौम के लिए जीना सीखिए, कौम के लिए मरना सीखिए। हमारा उड़ना पिछौना हमारा कौम होनी चाहिए। दिन रात इसी के ध्यान में हमारी तमाम तर कसरतें कायल होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि यही मौका है अपनी कौम से कमिटमेंट करने का। और मैं आखिर में हुकूमत पंजाब का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मैंने उनकी मोरी सर्विस पे भी ऐलान किया था, वो ऐलान दोहराए देता हूं कि खुशपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है। मैं ये ऐलान करता हूं कि उस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल कर दिया गया है और उसका नाम शहबाज भट्टी शहीद गर्ल्स हाई स्कूल रख दिया गया है। रोड, वो सड़क जो समुद्री से उनके गांव खुशपुर की तरफ आती है, मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब में शहबाज शरीफ साहब से बात की थी और उन्होंने उसे शहबाज भट्टी शहीद रोड के नाम से मंसूब किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि शहीद कभी मरता नहीं, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। और हम अपने कामों से जाहिर करेंगे कि जो हम बातें यहाँ पर करते हैं, क्या उन बातों पर हम पूरा और खरा उतरते हैं। और मैं ये समझता हूं कि शहीद जो दिलों में जिंदा है, उसे आंखों में जिंदा रखने के लिए भी मैं समझता हूं कि ऐसे इक़दामात करने की जरूरत है ताकि शहीद की रूह को जो है वो सुकून पहुंचे। वक्त आ गया है इनकलाब बर्पा करने का। और आज मैं समझता हूं कि आपकी पूरी क़यादत आज यहाँ पर मौजूद है। हमने ये अदा भी करना है और उन लोगों को ये पैगाम भी देना है कि ना तो हम झुकने वाले हैं और ना ही हम अपने इस कौस से पीछे हटने वाले हैं। और इस शेर के साथ उन लोगों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस ऐनी गल समझानी है। तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस ऐनी गल समझानी है। वेले दिए वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, साडे नाल ना वैर वधा। असी ते पागल दीवाने आ, साडे नाल ना वैर वधा। साडी जान तली ते रहिंदी, तू नस नस जान बचानी है।